नहीं गया था क्यों? What do you think? थोड़ा पीछे हो जाए, ज़्यादा लोग नहीं है। आ जाओ भाई पीछे आ जाओ भाई पीछे फ्रेम आ जाएगा पूरा और पीछे हो जाओ। हमारे पास तो जिम है हाँ फोटो वाली आ गए अबे हो गया तो चलो पता नहीं वही नहीं कुछ मारो वन सेकंड होल्ड थैंक यू सो मच बोली कि फोटो हो गया मीडिया को बोल Okay, so welcome everyone to the Travel Shopping Extravaganza. It's going to be glamour and glitz and a lot of fashion. And of course, that's not going to be possible without all the glamorous beauties that are standing next to me right now. We have our original calendar girls from the upcoming film by Madhur Bhandarkar. So girls, thank you so much for coming out today. Thank you. And to be debutantes in a film, maybe. So can you all help me, like, in one word, what was the experience like working with you? I don't know. To start with, I don't know how to just use one word or one sentence. How it's working. So you can see the size of the heel, they're not very high, so you can take it all throughout the day. And yes, they look really stylish. I like the fact that it's got a bit of strappy as well as a pump look. So that's a mix of two styles, and that just makes it very stylish. What I really like about this is that because her entire dress is completely sequined, so I've chosen a pair which is not very golden. It shouldn't overpower the entire look, and at the same time, even the shoes should stand out. I really wanted strappy, shoes for this look because her gown is, anyways, it's a maxi, which is a date night, which is why I've given her a lovely lacy number, and then she's paired it up with these super adorably hot pink pairs of pumps. And as you can see, it's very minimal because her dress is fully printed. So I've chosen a pair of pumps which is plain and satin. You see, what we really like about satin is that the finish is shiny, but at the same time not too shiny. And what I love is, again, the length of the heel is actually cool, and it's really comfortable because the stiletto is not that thin. It's actually a little thicker. You can even dance with it. Right? Definitely. And since she said that she's a lover of heels, she would definitely choose something very comfortable so that she could also be at night, go out at night and dance with her. I can run marathon. There you go. That's the trick. We actually won the calendar once the category. Excuse me. पीछे और पीछे का ही मतलब सर यहाँ पे last one. सेंटर ला इथे सर लास्ट वन सर इथे समोर आहे खाली इथे इथे
देखिए, अगर आदमी परिश्रम नहीं करेगा, आदमी मेहनत नहीं करेगा, तो फिर वो कैसे रंग लाएगा? वो तो करना ही पड़ेगा। वो चाहे बारिश हो, तूफान हो, कुछ भी, प्रमोशन तो करना ही पड़ता है। और जब खास करके पिक्चर में सब नए लोग हैं और एक बजटेड फिल्म है, तो उसके लिए ज़्यादा करना पड़ता है। मासूम लड़कियों के चेहरे देखो कैसे मतलब भीगती हुई यहाँ पहुंची है। तो ये देखो, इनका संघर्ष रंग लाएगा, यही मैं चाहूँगा। आप आई थी भीगते हुए ना, बिल्कुल भीगी हुई मैं आई थी यहाँ पे। उफ, ये बारिश। बट एनीथिंग फॉर आवर फिल्म कैलेंडर गर्ल्स हैज आवर सोल एंड हार्ट इनटू इट, एंड मधुर सर के लिए तो मैं 7 समुंदर पार करने को भी तैयार हूँ। सबकी एक्टिंग सिखाई है आपने, वाह वाह। नहीं, मेरे ख्याल से सब लोग ने अच्छा काम किया है। और मेरे ख्याल से मुंबई जैसे शहर में इंसान इतना तो सीख ही जाता है। और खास करके जब इंडस्ट्री में आते लोग ऐसे कहावतें पुरानी किया, अगर जिंदगी में आपने कुछ नहीं किया हो, अब इंडस्ट्री में, तो आपको इंडस्ट्री सब सिखा देती है। मधुर सर, जब भी हम देखते हैं आपकी एक कैलेंडर हमेशा ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमने कल भी रात को एक प्रमोशन में थे, तो थोड़ा सा उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो नहीं आ पाई। उससे पहले हमने कायरा दत्त जो है में से, वो उससे पहले हमने चंडीगढ़, कोलकाता, आप देखेंगे ट्विटर पे मुझे फॉलो करते हैं, फेसबुक पे, हर जगह वो है, तो आज नहीं आई। तो ठीक है, कल हम लोग फिर इंदौर जा रहे हैं सवेरे, तो कल सब चले जाएंगे। मधुर जी, ऐसी कौन सी फिल्म थी विच हैज इंस्पायर्ड यू सम वे और द अदर फॉर फिल्म मेकिंग, या किसी तरह से आपको जो फिल्म अच्छी लगी? मुझे लगा कि मेरे ख्याल से मैं जिस तरह का व्यक्ति हूँ, जिस तरह से स्ट्रगल रहा है मेरा, मुझे वीडियो कैसेट्स का जो मेरा व्यवसाय था वो मुझे स्ट्रगल में काम आया, और मुझे वहाँ से प्रेरणा मिली कि मुझे फिल्म मेकर बनना है। बाकी फिल्में तो डेफिनेटली बहुत है, सत्यजीत रे साहब की फिल्में अच्छी लगी, मृणाल दा की अच्छी लगती है फिल्में, और मणिरत्नम साहब की अच्छी लगती है, रमेश सिप्पी साहब की फिल्में अच्छी लगती है। तो ऐसा कई ऐसे फिल्म मेकर है इंस्पायर करते, गुरुदत्त साहब की फिल्में अच्छी लगी। तो कहीं ना कहीं इंसान जो है प्रेरणा लेता है, उसके बाद चाहता है कि मैं उस तरह का फिल्म, उस तरह का सब्जेक्ट, उस तरह को कला को मैं एक दिखाऊं लोगों के सामने। Any feedback from your previous artist about this film? क्या प्रियंका, कंगना की तरफ से इन लड़कियों के लिए कोई encouragement या कोई words या नहीं, ऐसा मैंने किसी से बात किया नहीं, क्योंकि सब बिजी है, सब अपने, प्रियंका जी अमेरिका है, कंगना बिजी कट्टी बटी में, तो मेरा संपर्क रहा नहीं। लेकिन जिन्होंने भी ट्रेलर देखा है, जिन्होंने भी गाने देखे हैं, तो लोगों ने तारीफ की है, और टोटलिटी में फिल्म को काफ़ी सराहा है, पसंद किया है, कि लोगों ने उत्सुकता भी जताई कि हमें फिल्में देखनी है। और ये बात अच्छी बात है कि न्यू कमर्स के साथ एक बजटेड फिल्म लोग देखना चाहते हैं, कैलेंडर गर्ल्स, तो मेरे ख्याल से अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। मधुर सर, कहीं ना कहीं लोग ये भी कह रहे हैं कि फैशन की तरह ही है ये कैलेंडर गर्ल। तो अच्छा है, फैशन की तरह हिट भी हो जाए फिर। वैसी है? नहीं, देखिए मेरे ख्याल से देखिए क्या होता है कि कई ऐसे फिल्म मेकर होते हैं, कई ऐसे फिल्म मेकर होते हैं जो अपना एक छाप होती है उनकी एक स्टैम्प वैल्यू होती है, जो जिस तरह से फिल्म बनाते हैं उनका एक। तो मेरे ख्याल से मेरा जो है वो रियलिज्म का रहा है, ग्लैमर वर्ल्ड का रहा है, चाहे हीरोइन हो, फैशन हो, पेस्ट्री हो, वो वर्ल्ड दिखाने में कंफर्ट लेवल है मेरा। ऐसे कई फिल्म मेकर है जो हिस्टोरिकल बनाते हैं, ऐसे कई फिल्म मेकर रोमांटिक बनाते हैं, ऐसे कई फिल्में लॉस्ट एंड फाउंड बनाते हैं, ऐसे कई फिल्म मेकर है रियल अंडरवर्ल्ड की फिल्म बनाते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से घुमा फिरा कि मेरे पर ही इस तरह से पूछा जाता है कि आप ग्लैमर वर्ल्ड से क्यों है। ग्लैमर वर्ल्ड बहुत बड़ा है, एक भव्य समुद्र की तरह है, तो मेरे ख्याल से मैं जो दिखाता हूँ उसमें से बूंद बूंद पानी है जो मैं दिखाता हूँ, उसमें भव्यता बहुत है। और अगर मेरे ख्याल से फैशन वर्ल्ड जो है वो एक प्रियंका चोपड़ा की कहानी थी, एक मॉडल की कहानी थी सोलो, और क्या होता उसके लाइफ में। हीरोइन की कहानी थी एक सुपर स्टारडम की, कि वो अपने स्टारडम को बचाने के लिए कुछ भी हद पे जा सकती है। कैलेंडर गर्ल कहानी एक साल की जर्नी है कि एक साल में लड़कियों का क्या होता है, क्या उनको सक्सेस मिलने के बाद, उस स्तर पे आने के बाद कितना संघर्ष करना पड़ता है, क्या वो सक्सेसफुल बनती है, नहीं बनती है, क्या होता है, क्योंकि इनका केवल जो होता है टेन्योर होता है 1 साल का होता है, वो 1 साल में क्या होता है, तो ये अलग अलग है। तो अब इस तरह की मेरे ख्याल से फिल्म तो अलग अलग हिसाब से आप देखोगे। हाँ भी ग्लैमर वर्ल्ड है तो इसमें मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। अगर मैंने कोई बार का सीन डाला कोई पिक्चर में तो लोग कहेंगे चांदनी बार का सीन है। मैंने अगर कोई 2 कैरेक्टर ट्रैफिक में बात करे, बोले ट्रैफिक सिग्नल का सीन है, तो मैं तो फिल्म बना नहीं सकता उस तरह से। फिर किसी मैं शूटिंग में डालूंगा तो बोलेगा तो हीरोइन दिख रहा है, कोई जेल का सीक्वेंस है बोलेगा जेल का है। तो इस तरह की कोई रैम चला दिया तो बोले तो फैशन है। तो देखिए क्या होता है कि हर किसी का अलग अलग स्टैम्प होता है, अलग अलग एक ये होता है। और जैसे मैंने कहा, आप अलग अलग स्टोरी करते हो, जब आप भी पेज 3 कवर करते हो या ग्लैमर वर्ल्ड, हर एक स्टोरी अलग होती है, अलग अलग हिसाब से हम लोग देखते हैं। तो मेरे ख्याल से कैलेंडर गर्ल्स को भी उसी शैली में देखना चाहिए कि एक सब्जेक्ट है, न्यू कमर्स का सब्जेक्ट है, कोई इसमें स्टार नहीं है, सब जो है एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़कियां हैं जिन्होंने अपना डेब्यू कर रहे हैं, अच्छे फैमिली से है। और मेरे ख्याल से उनको प्रोत्साहन, उनको सपोर्ट आप लोग मीडिया के माध्यम से देना चाहिए।
25 तारीख को और भी फिल्म रिलीज हो रही है, तो देखिए सबकी देखो हर जगह ऐसा है ना कि अभी हर हफ्ते कोई ना कोई दो 3 पिक्चर रिलीज होती है, तो सबकी पिक्चर चले। हम तो चाहते हैं सबकी पिक्चर चले, क्योंकि जितना रेवेन्यू जितना पैसा इंडस्ट्री में आएगा उतना हम सबके लिए अच्छा है। और अलग अलग फिल्में अलग अलग टाइप का सिनेमा है, तो जिनकी भी चले सबकी चले। मैं तो चाहता हूँ हम तो ये उनके लिए भी बोल रहे हैं कि उनकी पिक्चरें चले, हमारी भी चले, सबकी चले। क्योंकि अगर पैसा जनरेट होगा, लोग थिएटर में जाके पिक्चर देखेंगे, तो हमारे लिए रेवेन्यू आएगा, फिल्म इंडस्ट्री के लिए रेवेन्यू आएगा, और भी लोग आएंगे न्यू कमर के साथ फिल्म बनाएंगे, बजटेड फिल्में बनाएंगे, तो ये अच्छी बात है। कितना बड़ा दिल है आपका? हाँ? कितना बड़ा लगता है आपको? बहुत आप तो इतने सालों से जानते हो मुझे। जी वो देख ही रहे हैं सर, अब कितनी महानता है आप में से। थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल से दिल की बात नहीं है, ये जो है एक फिल्म का जज्बा है, और जब जज्बे में आप फिल्म देखते हो, जिस तरह का सब्जेक्ट है, जिस तरह का टॉपिक है, और आप लोग को डेफिनेटली ये अचंभे में डालेगा कि कैलेंडर गर्ल जैसा सब्जेक्ट है, थॉट है, जिनके बारे में आपने सुना, आपने कई बार देखा, पढ़ा, लेकिन गॉसिप कॉर्नर में आपने शायद बात भी की होगी इसकी, लेकिन आपने फिल्म के माध्यम से इसे देखा नहीं है। मेरे ख्याल से ये उन चीज़ों को खुलासा या दिखाता है, या लोगों के सामने प्रश्न चिन्ह लगाता है कि कैलेंडर गर्ल्स की सच्चाई क्या है। नहीं तो बाकी दोनों कुछ बोला ही नहीं इन्होंने। नहीं आपकी सर, हाउ वाज ये बहुत स्ट्रिक्ट है क्या? Not at all. He's sounding strict now. He's not strict. He gives you all the liberty. As a newcomer, I have no space to complain. I'm spoiled. Pampered, spoiled. Each moment when I shot with him, he has given me the liberty to do what I want as a newcomer. That's all I can say. हाँ बिल्कुल, क्योंकि जैसे आप बोल रहे हैं कि स्ट्रिक्ट तो बिल्कुल नहीं है, इनफैक्ट बहुत मस्ती खोर हैं, और इनके सेट पे आपको जैसे ही आप एंटर होंगे आपको पता लग जाएगा सिर्फ जोक्स, जलवा, सिर्फ यही सब चलता रहता है, झंडू। तो एक्चुअली मधुर सर इज ऑल अबाउट जलवा, ही इज अ जलवा मैन। तो फुल मस्ती, फुल एनर्जी होती है हमेशा इनके सेट पे, और इसीलिए बहुत ईजी हो जाता है इनके साथ काम करना, क्योंकि इतना मस्ती भरा माहौल जब स्पेशली एक न्यू कमर को मिलता है तो हम लोग अपना 100% बहुत इजीली दे पाते हैं। एनी मोर वर्ड्स जो ये यूज करते हैं सेट्स पे, जलवा? हाँ काफ़ी है, झंडू और जलवा तो आपने सुन लिया। उसके अलावा जब आप परफॉर्म करने जाने वाले होते तो आपको एंकरेज करने के लिए बोलते हैं अवनी जाके आग लगा दे। दैट मीन्स यू हैव टू गिव योर नॉट 100%, 200%, एंड द एंटायर यूनिट इज देयर टू सपोर्ट यू। एंड जब आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो तो अप्रिशिएशन के लिए बोलते हैं दर्द है तुम्हारे परफॉर्मेंस में, सीन में है, आवाज़ है। तो ये सब जो उनके लिंगोज है वो काफ़ी फेमस है हमारे सेट पे, और हम यूज टू, अब तो हमारी पर्सनल जबान पे भी वो आ चुका है, हम लोग डे टू डे लाइफ में वो बोलना शुरू कर दिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।